हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 27 को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन। नाउ अगेन ज्ञान इज आस्किंग जिज्ञासा दीदी दैट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज and how wounds are repaired. So as we all know that multicellular organisms means large number of cells are present in the body of these organisms. Now, how these so much cells are produced in the body of multicellular organisms? So that is by the process of cell division. Now, the cell which is undergoing division, that cell is known as mother cell, and the cells which are produced from the mother cells are known as daughter cells. And therefore, in all multicellular organisms, they grow in size, develop and replace the dead cells by this process of cell division. Even the wound or the tissues get repaired by the cell divisions, and also gametes are produced by this cell division. Now, cell division is of two types. First is mitosis cell division and second is meiosis cell division. Now let us see what is the difference between the two types. In mitosis, the mother cell is dividing into two identical daughter cells. As you are seeing in the diagram, in first diagram, that is mitosis, a single cell is dividing into two cells. Now as you see the number of chromosomes, now the mother cell and the two daughter cells has the same number of chromosomes. As mother cell is having one pair of chromosomes, and so as a result in mitosis the daughter cells are also having one pair of chromosomes. Now such type of cell division takes place in most of the cells and is responsible for the growth and repair. And in such type of cell division, number of chromosomes in daughter cell and the mother cell remains same. Now let us see the second type of cell division, which is known as meiosis. Now as you see in the diagram, in this type of cell division, it is taking place only in specific cells of reproductive organs or tissues. As a result, gametes are formed. Now, as you are seeing in the diagram, the mother cell is having two pair of chromosomes, whereas after meiosis, the daughter cell so formed is having half the number of chromosomes as compared to the mother cell. So in this process, the mother cell is undergoing two consecutive cell division. As you are seeing, first two cells are formed and then from these two cells, four daughter cells are formed. So consecutive two division is taking place, resulting in the formation of four daughter cells. And these daughter cells so produced are having half the number of chromosomes as compared to their mother cell. So these gametes are having half number of chromosomes, and when these male and female gametes fuse together again, the number of chromosomes is same as compared to their parents. अब एक बार वर्कशीट को हम हिंदी में भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कोशिका विभाजन क्या होता है और जीव कैसे वृद्धि करता है, या अगर हमें घाव या चोट लगी है तो वह कैसे ठीक होता है। तो जैसा हमें पता है, बहुकोशिकीय जीव मीन्स उसमें बहुत सारी अनगिनत कोशिकाएं होती हैं, और जो जीव है उसमें इतनी सारी कोशिकाएं कैसे आती हैं? कोशिका विभाजन के द्वारा जीव वृद्धि करता है। अब ये कोशिका विभाजन क्या है? जब कोई कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं, उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका कहलाती है, और विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं पैदा हुई हैं उनको हम क्या कहते हैं? संतति कोशिकाएं। अब कोशिका विभाजन के द्वारा क्या हो रहा है? जीवों में वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है। जैसा कि अगर हम अपना भी शरीर देखते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तो कितने थे? छोटे से थे, और अब हमारा शरीर इतना बड़ा हो गया है। तो वो कैसे हुआ? कोशिका विभाजन होते होते शरीर में इतनी कोशिकाएं बन गई और हमारे शरीर का विकास और वृद्धि
हो गई। अब इसके अलावा हमारे शरीर में अगर घाव है ना, या युग्मक बन रहे हैं, तो वह क्रिया भी कोशिका विभाजन द्वारा ही संपन्न होती है। अब कोशिका विभाजन दो तरह से होता है, एक है समसूत्री कोशिका विभाजन और एक है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। पहले हम समसूत्री कोशिका विभाजन देखते हैं। इस कोशिका विभाजन में जो मात्र कोशिका है वो दो संतति कोशिकाओं या दो डॉटर सेल में विभाजित होती है। अब जो कोशिकाएं बनी है और जो माता कोशिका है, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है और यह सामान्य वृद्धि के लिए होती है। जैसा कि आप चित्र में बाएं तरफ वाला जो चित्र देख रहे हैं उसमें क्योंकि कलर डिस्टिंग्विश किया हुआ है, तो जो माता कोशिका है उसमें दो क्रोमोसोम्स हैं और उसके फलस्वरूप जो दो डॉटर सेल्स बने हैं उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या समान है। अब जैसा कि आप समसूत्री विभाजन में देख रहे हैं, एक बार फिर से माता कोशिका में दो क्रोमोसोम्स हैं या दो गुणसूत्र हैं, उससे आपको पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है किस तरह से सेल डिवाइड हो रहा है या कोशिका विभाजित हो रही है और दो कोशिकाएं बन रही है। उन दो कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या माता के गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है। अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का अगर हम चित्र देखें तो मात्र कोशिका में आपको 4 क्रोमोसोम्स या 4 गुणसूत्र नजर आ रहे हैं और मात्र कोशिका कितनी बार विभाजित हो रही है, यहाँ पर 2 बार विभाजित हो रही है और ये दोनों बार लगातार विभाजन हो रहा है, जिसके कारण जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक मात्र कोशिका से पहले 2 कोशिका बनी और फिर 2 से 4 कोशिका बनी और गुणसूत्रों की संख्या माता कोशिका से अगर हम तुलना करें तो उसके आधी है। और ये जो कोशिका विभाजन है ये केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है, जहां पर कि युग्मकों का निर्माण होता है और ये युग्मक आधे माता से आए हैं और आधा पिता से, और दोनों मिलकर फिर से गुणसूत्रों की संख्या समान हो जाती है। अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन इन ऑर्गेनिज्म। कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है। जैसा कि अभी हमने वर्कशीट में देखा कि सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन में क्या हो रहा है कि नए सेल्स बन रहे हैं और अगर हमारे शरीर में कहीं पर चोट भी लग गई है तो वहां पर भी जो है वो डेड सेल्स भी रिप्लेस हो रहे हैं नए सेल से बाय सेल डिवीजन। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वेयर डज मियोसिस सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डॉटर सेल्स इन इट। यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है और इससे बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है। तो हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ हो रहा है, प्रजनन अंगों में, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, और इससे जो संतति कोशिकाएं वे क्या बना रही हैं, गैमीट्स फॉर्मेशन या युग्मक बनते हैं। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं और जब ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल इफ इट अंडरगोज मियोसिस तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं और अर्धसूत्री विभाजन के बाद संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र रह जाएंगे, 23, क्योंकि मियोसिस में हमें पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो रहे हैं हाफ में। अब फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं या व्हाट इज सेल डिवीजन। एज वी नो द प्रोसेस बाय विच द सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर न्यू सेल्स इज नोन एज सेल डिवीजन। यानी कि जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। तो होप स्टूडेंट्स वर्कशीट इज इजी और आपको समझ में आ गई होगी। वर्कशीट को पहले ध्यान से देखें, उसके पश्चात क्वेश्चन आंसर्स को अपने आप करने का प्रयास करें। अगर आप वर्कशीट को ध्यान से समझ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स अपने आप करना बहुत आसान है। सो डू द क्वेश्चन आंसर्स, watch complete video and thank you for watching this video.